Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are good. We are on the last topic of chapter number 6 solutions. That topic is solution, suspension and colloids. Students, you are well familiar with the types of solutions. The component of a solution. We have made the 9 type of different solutions on the basis of change of nature of solute and a solvent. We have made 9 type of different solutions. You have read about the liquid solutions, gaseous solutions, solid solutions in detail, and the solubility of solute in solution, and then effect of temperature. So these all topics are about solution. So there is a comparison between suspension and colloid with solution. What is a suspension, what is colloid? So let us discuss here in this slide. Okay, dear students, recall the solution, and the solution has the same properties as you read in the previous lectures. Now identify what are solutions and what are colloids along with some properties of solution. Okay, dear students, let us start. Solution, suspension and colloids. First of all, very important definitions. You have to learn these definition as it important definition. First is solutions. The homogeneous mixture in which the particles or the individual molecules or ions distributed evenly throughout the surrounding fluid is called solution. Homogeneous mixture है, मतलब solute and a solvent एक ही फेज में आएगा, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट. हम सराउंडिंग फ्लूइड उसका वाटर है, उसमें हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुगर ऐड कर रहे हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा. उसका वो एक ही फेज़ में आ जाएंगे उसके कंपोनेंट. ओके, तो हम इसको सोल्यूशन कहते हैं. आप डेली लाइफ में सोल्यूशन की बहुत सारी एग्जांपल्स आपने पढ़ी भी हैं. अभी 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन बनाए, कोई भी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं. तो वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एग्जांपल, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर इट गिव्स सोल्यूशन, व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर इट गिव्स सोल्यूशन. Okay, you can quote any type of example, which one is convenient to you. Okay, dear students. Then second types are colloids. Now what are colloids? Let us study. Heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture mean कि they are not in same phase. Their phases are different. Maybe some particles are in solid form, maybe some particles are in liquid form. So they don't have the same phase. वो एक phase में नहीं होंगे. Of tiny particle of a substance dispersed through the medium is called colloid. Colloid में heterogeneous mixture होगा, उसके particles evenly distribute नहीं होंगे, वो through the medium, अगर liquid medium है उसमें disperse हुए होंगे tiny particles. ठीक है, तो ये evenly distribute नहीं हुए और homogeneous mixture नहीं बना रहे, ये heterogeneous mixture बनाएंगे. आपको example से clear हो जाएगा. जैसे मिल्क है, अगर आप मिल्क को देखें तो आपको लगता है कि पूरा का पूरा वो उसके सारे कंपोनेंट मिल्क के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स हैं, वो सब उसके अंदर डिज़ोल्व हुए हैं. और जब आप एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा. इस तरह बटर, जैम, जेलीज, मायोनीज़, ये मिक्सचर तो हैं लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ये एक फेज़ में नहीं होंगे, लेकिन हम इसको नेकेड आई से, आम आँख से नहीं देख सकते इसके पार्टिकल डिस्पर्स हुए. ठीक है, हम इसको आम आँख से तो नहीं देख सकते, लेकिन आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में हम इसको कैसे विजुलाइज करें. देन थर्ड वन है सस्पेंशन. सस्पेंशन एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको पहले बता देती हूँ कि आप वाटर लें एक कप के अंदर और उसके अंदर आप कुछ चॉक पाउडर डाल दें, तो क्या चॉक पाउडर उसके अंदर सॉलेबल होगा? नो, इट विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑन द बॉटम ऑफ दैट कप. ठीक है, इसी तरह आप सैंड ले लें, मड ले लें, मिट्टी ले लें, वो आप उसको डिज़ोल्व कर दें उसके अंदर, तो वो मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद वो सारा नीचे जाके सेटल हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद रखने के बाद अंडर द ग्रेविटी वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो हम इनको सस्पेंशन कहते हैं. ये आपने अक्सर देखी हुई एग्जाम्पल. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग पार्टिकल्स लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई. इतने बड़े होते हैं कि हमें वो ग्लास में या हमें बीकर में सस्पेंड होते हुए नज़र आ रहे होंगे. एंड क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड.
हमें उसमें वाटर अलग नज़र आ रहा होगा और हमें वो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड होते हुए अलग नज़र आ रहे होंगे, तो इस टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आता होता है। आप यूँ समझ लें कि 99% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कैसे आता होता है, क्वेश्चन डेफिनेशन तो आपने एज इट इसको याद करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट अस स्टडी। सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड के दरमियान एक कंपैरिजन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशंस एंड सस्पेंशन, और राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन एंड कोलाइड। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये ऐसे आएगा, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। ओके, दिस इज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन। बट इन लॉन्ग क्वेश्चन ये पूरा टेबल आपको एज इट लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड इन डिटेल। उसके लिए आपको सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड की पहले डेफिनेशन ऊपर मेंशन कर दें, उसके बाद आप इन तीनों का कंपैरिजन लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपकी बुक के अंदर लास्ट टॉपिक में ये कंपैरिजन लिखा हुआ है। वो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत अच्छी तरह याद करें, और वो लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। पहली प्रॉपर्टी, सोल्यूशन की पार्टिकल टाइप। सोल्यूशन के पार्टिकल दे मे बी आयंस, दे मे बी एटम, दे मे बी मॉलिक्यूल, किसी भी तरह के पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। कोलाइड के यूजुअली लार्ज मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन में लार्ज पार्टिकल्स और एग्रीगेट्स उन सबको इकट्ठे बल्क में होते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल साइज क्या होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दैट कि इनका कोई स्पेसिफिक साइज है जिसकी वजह से हम इनको सोल्यूशन कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। यस, अगर साइज 0.1 से 1 नैनोमीटर तक होगा तो वो सोल्यूशन कहलाएगा। उसके पार्टिकल का साइज, मतलब उसमें जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज 0.1 से 1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर होगा। कोलाइड का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगा, और सस्पेंशन का 1000 नैनोमीटर से नैनोमीटर एंड ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपको क्लियर लग रहा है कि सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आई, हम आम आँख से नहीं देख सकते, हम उसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ये इतना छोटा साइज होता है, ठीक है। अब कोलाइड का साइज कंपैरेटिवली सोल्यूशन के साइज से बड़ा होता है, तो हम इसको नेकेड आई आम आँख से नहीं देख सकते, हम इसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन इतना बड़ा साइज है कि आपको जिस तरह चॉक के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल, मड के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ना ग्लास के अंदर, तो वो इतना बड़ा साइज है कि वी कैन ईजिली विजुलाइज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन बाय आवर नेकेड आई, हम आम आँख से देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज तो विजिबिलिटी आप फ़ौरन उसकी बता देंगे कि विजिबल हैं कि नहीं है, ओके। अब इफेक्ट ऑफ लाइट अभी आपको मैं बाद में बताती हूँ। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है, जिस तरह मैं सस्पेंशन से स्टार्ट करती हूँ। जिस तरह आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि चॉक का सोल्यूशन बनाया है, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद आप रख देंगे बीकर को, आहिस्ता आहिस्ता बीकर से चॉक के जो पार्टिकल्स होंगे खुद ही जाके नीचे बैठ जाएंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेडिमेंट फॉर्म्स नीचे जाके बैठ गए, देन अनस्टेबल हुआ ना, इसका मतलब है सोल्यूशन स्टेबल तो ना हुआ, ठीक है। अब कोलाइड को देखते हैं। आप मिल्क की एग्जांपल ले लें, मिल्क के पार्टिकल नीचे जाके नहीं बैठते, ठीक है, स्टेबल होता है, इजीली सेपरेट नहीं होते, ठीक है। इसी तरह सोल्यूशन है, आपने जिस तरह शुगर का सोल्यूशन बनाया है, आपने सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया है, वो भी स्टेबल है, वो भी इजीली सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। किसी केमिकल, किसी डिफरेंट मीन से आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टेबल हैं, एट नॉर्मल कंडीशन वो स्टेबल हैं, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन, अब इसी पार्टिकल की साइज़ को ही अपने जहन में रखें और उसको फ़िल्टर करना है आपने फ़िल्टर पेपर से गुजारना है उसको। अब आपको पता है कि जो पार्टिकल बहुत बड़े होंगे वो फ़िल्टर पेपर से नहीं गुजर सकेंगे, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रहेंगे,
ठीक है। तो अब सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज सबसे छोटा है, वो नॉर्मल फिल्टर पेपर जो आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं उससे भी गुजर जाएंगे। एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है जिसके पोर्स बहुत छोटे होते हैं, वो उसमें से भी गुजर जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोलाइड के पार्टिकल्स नॉर्मल फिल्टर पेपर से गुजर जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, उससे पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ओके, अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स के लिए हमें स्मॉल होल वाला फिल्टर पेपर तो चाहिए नहीं, वो बड़े जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के ऊपर उसमें से भी पास नहीं कर पाएंगे, वो उसी के ऊपर रहेंगे, रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन इस तरह होती है। ओके, अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा यूनिफॉर्मिटी कैसी है इसकी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि नहीं। सोल्यूशन होमोजीनियस था, कोलाइड हेट्रोजीनियस था और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस था। डियर स्टूडेंट्स, देन ये और प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट अस स्टडी कि इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इससे डिफरेंट है। साइज आप पढ़ चुके हैं। फिल्टरेबिलिटी, फिल्टर कैसे किया जाता है वो भी आप पढ़ चुके हैं। सेटलिंग के नीचे सेटल हो जाते हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर विजिबिलिटी आपको बताया कि क्या आम आँख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, ठीक है। तो विजिबिलिटी भी आपने देख ली कि इनविजिबल है, नेकेड आई से भी नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। कोलाइड के पार्टिकल्स जो हैं नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, लेकिन आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और सस्पेंशन के साइज इतना बड़ा होता है पार्टिकल्स का कि वो हम आराम से उसको देख सकते हैं। ओके, सेपरेशन का आपको फिल्टर पेपर के हिसाब से बताया कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है और अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, ये हम पिछले कंपैरिजन में पढ़ चुके हैं। ओके, डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप इंक का ड्रॉप डालेंगे वाटर के अंदर, वो उसके मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज़ कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। सोल्यूशन में डिफ्यूजन होती है, क्विकली होती है, कोलाइड्स में स्लो हो जाएगी और सस्पेंशन के पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंपैरिजन में आ जाती हैं कि ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन इनसे कैसे डिफरेंट है। कोलाइड सोल्यूशन कहें या आप सिर्फ कोलाइड कह दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी आई थी जो मैंने आपको कहा था कि मैं आखिर में बताऊंगी, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थी। ये जो इफेक्ट है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास 3 तरह की पिक्चर्स आ गई हैं। टेंडल इफेक्ट, लाइट का सोर्स है, जिस तरह देखिए नीचे टॉर्च है, सोल्यूशन में से लाइट गुजर रही है, उसमें आपको लाइट का पैसेज अंदर से गुजरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बीम ऑफ लाइट नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे थे कि वो उस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाए, तो ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, ठीक है। आगे कोलाइड को देख लें। कोलाइड जिस तरह मिल्क एग्जाम्पल उसने ले लिए, उसके अंदर आपको बीम ऑफ लाइट गुजरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। देयर पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट, वो लाइट को स्कैटर कर देंगे, ठीक है, इसीलिए आपको वो नज़र आ रही है। आगे सस्पेंशन को देख लें। उसने फ्लोर और वाटर, आटे का और पानी का मिक्सचर बनाया है, एक वो सस्पेंशन है, उसके अंदर से भी आपको बीम ऑफ लाइट गुजरती हुई नज़र आ रही है। तो हम इसको टेंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं, विच इज़ नॉट शोन बाय सोल्यूशन बट इट इज़ शोन बाय कोलाइड एंड सस्पेंशन, ठीक है। हमें बीम, जो लाइट बीम है वो नज़र नहीं आती सोल्यूशन में गुजरती हुई, लेकिन कोलाइड और सस्पेंशन में नज़र आती है, ठीक है। अब सबसे टॉप पे ये वाली जो पिक्चर है, टॉप वाली पिक्चर देखें, ये लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट चेक की गई, ये टॉर्च है, इससे पास कर रहे हैं, ये सोल्यूशन है, ये कोलाइड है, ये सस्पेंशन है। तो इसमें से देखें बीम ऑफ लाइट आखिरी 2 में नज़र आ रही है और इसमें से नहीं गुजर रही, इसमें से बीम ऑफ लाइट विजिबल नहीं है, इट डजंट स्कैटर द लाइट, इट डजंट शो द टेंडल इफेक्ट। ओके, इसको हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हम तीनों का कंपैरिजन आ गया। ओके, सोल्यूशन जिस तरह यहाँ पे देखें, पहली पिक्चर के अंदर सॉल्ट ऐड कर रहा है पानी के अंदर, तो ये सोल्यूशन बन गया। सस्पेंशन उसने क्या किया है, उसने उसके अंदर फ्लोर ऐड कर दिया है, आटा ऐड कर दिया, तो ये सस्पेंशन बन गया। और अगली पिक्चर के अंदर उसने मिल्क रखा हुआ है, मिल्क जो है उसमें फैट्स हैं जो वाटर के अंदर डिस्पर्स हुए हैं, ठीक है, तो वो कोलाइड आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गई हैं। फिर आगे ये और एग्जांपल्स आ गई। सोल्यूशन में आपने एयर भी पढ़ा था, सोल्यूशन है, ब्रास भी सोल्यूशन है, ब्राइन भी सोल्यूशन है, ब्राइन सॉल्ट का सोल्यूशन वाटर के अंदर, सोडा भी सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन,
कोलाइड में बटर, जेलेटिन, आइसक्रीम, मार्शमेलो, पेंट, रूबी, ये कोलाइड्स आ जाएंगे। सस्पेंशन, मार्बल इन वाटर, मडी वाटर, पेबल्स एंड वाटर एंड सैंड एंड वाटर, जो इजीली विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी टाइप्स हैं। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन है और कौन सा कोलाइड है। ये देखें, ये किसके एग्जांपल है, ये पेंट बना हुआ है, आइसक्रीम है, मिल्क है, जैम है, ये किसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्ले पार्टिकल्स हैं, वो बीकर के अंदर, वो बॉटल के अंदर रखे हुए हैं, वो सेटल हो रहे हैं, ये किसकी एग्जांपल है। इनको आइडेंटिफाई करें भी, ये किस किस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये देखें नीचे क्लियर सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर शो कर रहा है, कोई पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे। अगर होमोजीनियस है तो क्या क्लू मिलता है, ये क्या है। इन तीनों के नाम अब आपने खुद ही बताने हैं कि ये क्या क्या चीज़ें, किसकी एग्जांपल्स आएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो अब आपने कंपेयर करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स को। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ that mixture, whether it is whether it is solution, suspension or collide. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आप करके आएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डिस्कस इट विद मी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।